So, in today's video lecture, we are going to discuss the point measure of central tendency. Okay, there are five types of measure of central tendency. First is arithmetic mean, second median, third mode, fourth geometric mean, and fifth is harmonic mean. Okay, out of these five measure of central tendency, three are mathematical averages and two are positional averages. And the mathematical averages are arithmetic mean, geometric mean, and harmonic mean. These three it's called as mathematical averages and two are positional averages. First is median and second is mode. ओके तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक मीन. ओके अरिथमेटिक मीन अब हम तीन टाइप्स ऑफ फॉर्मूले के लिए डिस्कस करेंगे. फर्स्ट होगा हमारा रॉ डाटा, सेकंड होगा हमारा डिस्क्रीट सीरीज और अनग्रुप डाटा एंड थर्ड इज ग्रुप डाटा और कंटिन्यूस सीरीज. ओके इन तीन टाइप के फॉर्मूले के लिए हम यहाँ पे अरिथमेटिक मीन को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले डिस्कस करेंगे फॉर रॉ डाटा. इसके लिए हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे एंड द डेफिनेशन इज इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस divides by total number of observations. Okay, this is the definition of arithmetic mean. Suppose there are n observations x1, x2, x3, x4 up to xn. Then their arithmetic mean is addition of all the observations divided by total number of observations. That means arithmetic mean is denoted as x bar and the arithmetic mean is x1 plus x2 plus x3 plus up to so on plus xn upon n. Okay, this is the formula to find the arithmetic mean for the raw data. Let's discuss first example. Find arithmetic mean for the data 2, 4, 6, 8, 10. We know that the definition of arithmetic mean is addition of all the observation divided by total number of observations. यहाँ पे हमें total number of observations that means n given है 5. तो हम यहाँ पे arithmetic mean का formula यूज करेंगे. x bar is equal to x1 plus x2 plus x3 up to xn upon n. तो हमारे पास टोटल 5 ऑब्जर्वेशन है. तो हम यहाँ पे इन 5 ऑब्जर्वेशन की एडिशन करेंगे न्यूमरेटर में. दैट मीन्स 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n that is 5. So we get addition is 30 upon 5 and the final answer x bar is equal to 6. That means the arithmetic mean of given series is 6. Okay, जो फॉर्मूला हमारा रॉ डाटा के लिए. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फॉर डिस्क्रीट सीरीज और ungrouped data. Arithmetic mean for discrete series or ungrouped data. So let x1, x2, x3 up to xn be the n observations and f1, f2, f3 up to fn are the corresponding frequencies. Then the arithmetic mean is and the formula is x bar is equal to summation I is equal to 1 to n fi into xi divided by capital N, where f is the frequency of individual class and n is equal to sum of all frequency. दैट मीन्स डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में हमें कुछ ऑब्जर्वेशन गिवन होंगे x1, x2, x3 अप टू xn. उसके साथ करस्पॉन्डिंग हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होगी. दैट मीन्स हमें x एंड f की वैल्यू गिवन होगी. तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है x बार इज इक्वल टू समेशन fi इनटू xi. दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी एंड ऑब्जर्वेशन का मल्टीप्लीकेशन लेना है, उसकी एडिशन करना है और डिवाइड बाय n. कैपिटल n मीन्स सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज. दैट मीन्स जो फ्रीक्वेंसी गिवन है f1, f2, f3 अप टू fn उसका हम यहाँ पे एडिशन करना है. ओके, लेट डिस्कस वन एग्जांपल. फाइंड अरिथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा एंड द डाटा इज गिवन दैट first given the marks are 5, 10, 15, 20, 25, 30 and corresponding number of students given 8, 18, 12, 9, 7 and 6. इस डाटा के लिए हमें अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है. यहाँ पे जो x वैल्यू गिवन है वो वैल्यू हमारे x की होगी और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है वो हमारी फ्रीक्वेंसी होंगी f. तो इसके लिए इस डाटा के लिए हमें अरिथमेटिक मीन दैट मींस x बार फाइंड आउट करना है. तो जो हमारा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे. फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पे x एंड f का जो फ्रीक्वेंसी एंड ऑब्जर्वेशन का मल्टीप्लीकेशन करना होगा. तो उसके लिए हम यहाँ पे टेबल्स क्रिएट करेंगे जिसमें हम फर्स्ट राइट करेंगे मार्क्स वैल्यू ऑफ x, सेकंड कॉलम में राइट करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट मींस फ्रीक्वेंसी एंड थर्ड कॉलम में राइट करेंगे xi into fi. दैट मीन्स जो हमारे x वैल्यू ऑब्जर्वेशन एंड फ्रीक्वेंसी उनका हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ पे मार्क्स राइट करेंगे जो हमें गिवन था 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30. उसके बाद फ्रीक्वेंसी राइट करेंगे 8, 18, 12, 9, 7 एंड 6. देन अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे कैपिटल N की
जरूरत है। तो यहाँ पे हम कैपिटल एन फाइंड आउट करेंगे। कैपिटल एन मीन्स ये जो हमने फ्रीक्वेंसी यहाँ पे राइट किया है, इन सभी फ्रीक्वेंसी की हमें एडिशन करना है। एडिशन करने के बाद हमें यहाँ पे कैपिटल एन की वैल्यू मिल जाएगी। कैपिटल एन इज इक्वल टू 60। उसके बाद नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे एक्स इंटू एफ, दैट मीन्स एक्स एंड फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो सबसे पहले 5 इंटू एच विच इज 40, नेक्स्ट 10 इंटू 18 180, 15 इंटू 12 180, 20 into 9 which is 180, 25 into 7 175 and 30 into 6 which is 180। देन यहाँ पे जो हमने x एंड f का जो मल्टीप्लीकेशन लिया है, इन सभी वैल्यू का अगर हम एडिशन करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी समेशन ऑफ xi into fi। So here we get summation of xi into fi and the addition is 935। तो यहाँ पे हमने समेशन xi into fi की वैल्यू फाइंड आउट किए, कैपिटल N की वैल्यू फाइंड आउट किए। जो हमारा फॉर्मूला अरिथमेटिक मीन का x बार इज इक्वल टू समेशन xi into fi डिवाइड बाय n, उस फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू x बार is equal to summation xi into fi divided by capital N. The value of summation fi xi is 935 and capital N is 60. So here finally we get the arithmetic mean and the arithmetic mean is 15.58. Okay, इस प्रकार से हमने arithmetic mean find out किया है for the discrete frequency और ungrouped data. Okay, next हम another एक example यहाँ पे study करेंगे. Find arithmetic mean for the following data. And data is given, the value of x given 1 2 3 4 5 6 7, frequency given 5 9 12 17 14 10 6। तो इस सीरीज के लिए, इस डाटा के लिए, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए हमें यहाँ पे अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। अगर हमें सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल क्रिएट करेंगे। सो टेबल में फर्स्ट हम राइट करेंगे वैल्यू ऑफ एक्स फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड कॉलम में राइट करेंगे फ्रीक्वेंसी और थर्ड कॉलम में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स एक्स आई इंटू एफ आई, ऑब्जर्वेशन एंड फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलम में x की वैल्यू राइट करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। उसके बाद फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी राइट करेंगे। फ्रीक्वेंसी गिवन है 5 9 12 17 14 10 एंड 6। तो हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी राइट किया है। उसके बाद हम जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे राइट किया है उस फ्रीक्वेंसी का हम यहाँ पे एडिशन करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी कैपिटल एन की। अगर इन सब की अगर हम यहाँ पे एडिशन करेंगे तो यहाँ पे कैपिटल एन की वैल्यू हमें मिल जाएगी 73। आप कैलकुलेटर का यूज करके फ्रीक्वेंसी की एडिशन यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे एक्स एंड एफ का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो सब फर्स्ट कैलकुलेशन है 1 into 5 which is 5, second 2 into 9 which is 18, next calculation 3 into 12 which is 36, next 4 into 17 which is 68, next is 5 into 14 which is 70, next calculation 6 into 10 which is 60, next 7 into 6 which is 42। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन है मल्टीप्लीकेशन की आप कैलकुलेटर पे यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद हमें इन सभी वैल्यू के यहाँ पे एडिशन करना है। तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी समेशन एक्स आई इंटू एफ आई। अगर इन सभी वैल्यू की इस कॉलम की अगर हम यहाँ पे एडिशन करेंगे तो यहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा 299। तो यहाँ पे हमें अरिथमेटिक मीन मिल जाएगा। अरिथमेटिक मीन एक्स बार इज इक्वल टू, जो हमारा फॉर्मूला था समेशन एक्स आई इंटू एफ आई डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। अगर इसमें हम फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करेंगे, समेशन एक्स आई इंटू एफ आई की वैल्यू थी 299 अपॉन कैपिटल एन की वैल्यू थी 73। इन दोनों का अगर डिवीजन लेंगे तो हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 4.09। सो यहाँ पे हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट किया है फॉर द डिस्क्रीट सीरीज के लिए, इस गिवन एग्जांपल के लिए, एंड हियर वी गेट द आंसर एक्स बार इज इक्वल टू 4.09। तो ये हमने अरिथमेटिक मीन डिस्कस किया फॉर द डिस्क्रीट सीरीज और अनग्रुप डाटा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक मीन फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी और ग्रुप डाटा के लिए अरिथमेटिक मीन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। इन कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अरिथमेटिक मीन इज ऑब्टेन बाय फॉलोइंग फॉर्मूला एंड द फॉर्मूला इज एक्स बार इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n fi into mi divided by capital N, where f is the frequency of the class, m is equal to midpoint of the class and capital N is the sum of the all frequency.
दैट मीन्स जो हमने प्रीवियस एग्जांपल सॉल्व किए थे फॉर द डिस्क्रीट के लिए अरिथमेटिक मीन का सेम टाइम के एग्जांपल हो गए, लेकिन यहाँ पे हमें कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी गिवन है, दैट मीन्स ग्रुप डाटा गिवन है, दैट मीन्स हम यहाँ पे क्लासेस गिवन है। अगर क्लासेस गिवन है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्लासेस का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना होगा। मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद फ्रीक्वेंसी एंड मिड पॉइंट का हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लेंगे, देन उन वैल्यू का एडिशन करेंगे, तो यहाँ पे हमें न्यूमरेटर मिल जाएगा, सेम डिनोमिनेटर फ्रीक्वेंसी के एडिशन करेंगे तो कैपिटल एन की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएंगी। ओके, तो इसका भी हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। Example given that calculate arithmetic mean for the following data, and the data is given that marks and number of student. Marks means x की वैल्यू given है, number of student means हमें यहाँ पे frequency given है, तो यहाँ पे marks given है, classes में given है marks because ये हमारा continuous frequency distribution का डाटा है, that means group डाटा है, तो marks given है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, and corresponding number of frequencies, that means number of student given है 12, 18, 27, 20, 17 एंड 6। तो इसका हमें अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला राइट किया था समेशन एफ आई इंटू एम आई डिवाइड बाई कैपिटल एन, उसका हमें यहाँ पे यूज करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे एक टेबल्स क्रिएट करेंगे, जिस टेबल में हम सबसे पहले यहाँ पे मार्क राइट करेंगे, मार्क्स, मार्क्स मीन्स हमें यहाँ पे राइट करना है वैल्यू ऑफ एक्स, उसके बाद सेकंड कॉलम में राइट करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, उससे हम एज्यूम करेंगे फ्रीक्वेंसी, उसके बाद थर्ड कॉलम में हमें यहाँ पे राइट करना है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट जिसे हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे एम, एंड लास्ट कॉलम में मिड पॉइंट एंड फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लीकेशन लेना है, दैट मीन्स एफ आई इंटू एम आई, फ्रीक्वेंसी एंड मिड पॉइंट का हमें यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना है। यहाँ पे हमें जो डाटा गिवन है वो हमें ग्रुप डाटा गिवन है। सबसे पहले हम मार्क्स जो राइट करेंगे फर्स्ट कॉलम में, मार्क्स गिवन थे 0 to 10, सेकेंड 10 to 20, नेक्स्ट 20 to 30, नेक्स्ट 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। ओके, हमारे मार्क्स गिवन है, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है, वो भी हम यहाँ पे राइट करेंगे। सेकंड कॉलम में 12, 18, 27, 20, 17 and 6, this is the frequency. Next, for finding the arithmetic mean for continuous data, first we have to find the midpoint of the class। तो क्लास का मिड पॉइंट हम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, जो क्लास का लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट दोनों की एडिशन करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 10, दोनों की एडिशन करेंगे 0 plus 10, 10 डिवाइड बाय 2, सो मिड पॉइंट मिल जाएगा फर्स्ट क्लास के लिए 5। नेक्स्ट सेकेंड क्लास के लिए मिड पॉइंट लोअर लिमिट अपर लिमिट की एडिशन 10 plus 20, 30 डिवाइड बाय 2, दैट इज 15। नेक्स्ट क्लास के लिए 20 plus 30, 50, 50 डिवाइड बाय 2 विच इज 25। नेक्स्ट 30 plus 40, 70, 70 डिवाइड बाय 2 विच इज 35। नेक्स्ट 40 plus 50 which is 90, 90 divided by 2 which is 45, and the last class 50 plus 60 which is 110, 110 divided by 2 which is 55। तो यहाँ पे हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट किया है। सबसे पहले हम यहाँ पे कैपिटल एन को फाइंड आउट करेंगे। कैपिटल एन मीन्स जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम है उन सब के हमें यहाँ पे एडिशन करना है। अगर हम कैलकुलेटर पे एडिशन करेंगे तो हमें यहाँ पे कैपिटल एन की वैल्यू मिल जाएगी, कैपिटल एन इज इक्वल टू 100। उसके बाद अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने के लिए हमारा जो अरिथमेटिक मीन है उसका हम यहाँ पे फॉर्मूला राइट करेंगे। अरिथमेटिक मीन एक्स बार इज इक्वल टू, फॉर्मूला था हमारा समेशन एफ आई इंटू एम आई डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले समेशन एफ आई इंटू एम आई की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और वो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लेना होगा, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी एंड मिड पॉइंट का। तो सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन लेंगे 12 इंटू 5 का, 12 इंटू 5 विच इज 60। नेक्स्ट 18 इंटू 15 विच इज 270। क्या आप कैलकुलेटर पे भी इसका रफ कैलकुलेशंस कर सकते हैं। नेक्स्ट 27 इंटू 25 विच इज 675। नेक्स्ट कैलकुलेशन 20 इंटू 35, so 20 into 35 which is 700। next 12 into 45 which is 765, and last calculation 6 into 55 which is 330। so हम लास्ट में सबका एडिशन करेंगे तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी समेशन एफ आई इंटू एम आई, एडिशन करेंगे तो हमें यहाँ पे एडिशन मिल जाएगी 2800, दैट मीन्स 2800। आप यहाँ पे
एडिशन करने के लिए कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें समेशन एफ आई इंटू एम आई की वैल्यू मिल गई है 2800, दैट मीन्स 2800। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे फॉर्मूला में पुटअप करेंगे तो हमें यहाँ पे फाइनल आंसर मिल जाएगा। समेशन एफ आई इंटू एम आई की वैल्यू थी हमारे 2800 डिवाइड बाय कैपिटल एन की वैल्यू हमारे पास थी 100। तो यहाँ पे हमें एक्स बार दैट इज अरिथमेटिक मीन की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 28। तो यहाँ पे हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट किया है फॉर द कंटिन्यूअस डाटा, दैट मीन्स ग्रुप डाटा। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे merits and demerits of the arithmetic mean. So the first merit of arithmetic mean is it is easy to understand and easy to calculate. That means हम यहाँ पे easily हमें understood भी होगा और हम यहाँ पे formula का use करके easily calculate भी कर सकते हैं. It is rigidly defined. That means it is easily defined. It's give accurate result. जो भी हमने arithmetic mean find out किया है सबके हमें यहाँ पे accurate result मिल चुके हैं. And the last merit is it is capable for further mathematical operations. That means हमें यहाँ पे other mathematical operation में भी arithmetic mean का use कर सकते हैं. Next is demerits. First demerit is it cannot be calculated in open-end class intervals. अगर open-end classes given होंगे that means open-end classes कैसे होते हैं हमारे, सबसे पहले हम राइट करेंगे below 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to above, 50 to above, that means above 50. ये जो क्लासेस होते हैं हमारे ओपोनेंट क्लासेस होते हैं. इस क्लासेस के लिए हम अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट नहीं कर सकते बिकॉज ये जो डाटा है डाटा ग्रुप डाटा है और इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्लासेस का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना होता है. लेकिन यहाँ पे जो सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास का मिड पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं लेकिन फर्स्ट एंड लास्ट क्लास का मिड पॉइंट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं. बिलो 20 दैट मीन्स अपर लिमिट गिवन है बट लोअर लिमिट नहीं है, दोनों के एडिशन करके 2 से डिवाइड करने के लिए मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए. सेम अबव 50, लोअर लिमिट 50 गिवन है बट अपर लिमिट नॉट गिवन, सो यहाँ पे हम मिड पॉइंट फाइंड आउट नहीं कर सकते, सो हम कैन नॉट कैलकुलेटेड इन ओपन एंड क्लासेस. एंड द सेकंड डिमेरिट इज इट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज और लार्ज वैल्यूज. तो ये जो हमारा पॉइंट था अरिथमेटिक मीन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, उसमें हमने डिस्कस किया arithmetic mean for raw data, arithmetic mean for discrete series which is ungrouped data, arithmetic mean for group series, group data that is continuous series, and last merits and demerits. Okay, thank you.